भी तमाम इन्फ्लुएंसर के बताए गए रास्ते पर चल पाऊंगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 में। व्हेन आई वाज 12, 6th क्लास में पढ़ता था। कोचिंग से घर लौटा ही था कि आई गेट टू नो भैया के लैपटॉप घरे में छूट गेलो है, आई तो 1 महीना के बाद ले जेता। और मैं छुप के इस बेड और अलमीरा के बीच में अंधेरे में लैपटॉप लेकर बैठ गया और देखने लगा कि लैपटॉप में है क्या। और डेस्कटॉप पे ही मुझे संदीप महेश्वरी का ये वीडियो देखने को मिला। यहाँ इस स्टेज पे आकर के आप लोगों के सामने बोल सकता है, 2 घंटे छोड़ो 5 मिनट भी बोल सकता है। एंड उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी अपने दम पर कुछ बड़ा करना है। उस दिन के बाद से लेकर आज तक मैंने अपने लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं किया है, सिवाय मेरे बढ़ते हाइट के, जूते के साइज के और मेरे दाढ़ी के बाल के। और इसमें भी एज सच मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट कल जब मैं दोपहर में लंच करने के बाद अपने चेयर को रिक्लाइन करके शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे एक से बढ़कर एक मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिला उस लाइफ को जीने के लिए जिसे मैं इमेजिन करता था। उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है जिस भी फील्ड में मैं जाने वाला हूं, चाहे मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, इंजीनियर बनने वाला हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, कुछ भी बनने वाला हूं, इस हद तक मैं एफर्ट डाल दूंगा उस काम के अंदर तो आज तक किसी ने नहीं लगाया होगा। Everyone wants to be Cristiano, but I give you the map. You think you will do it? That it's difficult. It's The discipline. the discipline is the most difficult thing, not only in sports but in life. Whatever happens to you in your line of work, in your personal life, please accept it as the will of God, and that is the best thing for you. The second, nobody is going to ever take away from you, snatch away from you what you really deserve. And third, whether you get something or not, keep working hard because there is no alternative to hard work. आज की डेट में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है, जितना जब हमने स्टार्ट किया था तब था। बिल्कुल, वो तो फैक्ट है, कितना आप कितना ही कर लो वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। और ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे लोग सेम आप मान लो, और जितना डिफरेंट भी है उसका भी सेम तरीके का कंटेंट ऑलरेडी बना रहे हैं। तो मार्केट तो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है। तो अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत विशाल बनना है, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जो भी तेरे दिमाग में बहुत क्रेजी चीज आती है ना, और तू कहता है ये तो यार नहीं कर सकते, तेरे को वही करनी है, सही बताऊं तो वो करेगा ना, तो अपने आप वो ग्रोथ होगी। एक बहुत बड़ी बात बोली अभी क्या है, जहां पर ये लगे ना कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता या ये तो नहीं हो सकता, वही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको यही लग रहा है। Your first video is not going to get views, period. It's not. Your first 10 are not going to get views. I can very confidently say that. All you need to do, this applies to people who have dreams of being a YouTuber, is make 100 videos and improve something every time. Do that. And then on your 101st video, we'll start talking. My first 500 videos didn't deserve to get a million views. Like, there's a reason they did. They were terrible. But at the time, I thought they did. I'm in the mindset of a lot of small YouTubers where I thought those videos deserved a million views and I thought the algorithm hated me. But I watch them back now and I can tell you exactly why. The videos are just fucking horrible. And even in your worst times, you are committed to do the hard work, and it's not based on success. That to me is the real game here, because that is eventually God's test. Is how I look at it. And if you're not up to the test, then you're basically not being grateful and not being loyal to the opportunity that's been given to you. And I was part of an academy where no one was talking about that academy or that club. So for me, the only way up was if someone's getting 100, I have to get 200. Otherwise, no one's going to notice me. And I had that fire inside me all the time. And that's exactly what I did to come up the ranks. I scored so many runs that people could not ignore me because that was my only driving force. And that actually came from the example that my father set for me. मैं कहता हूँ 6 महीने के लिए गायब हो, 6 महीने के लिए बंद कर दो अपने कमरे में, दुनिया वालों को लगे मर गया, किसी को कोई पता ना चले, और 6 महीने खुद को इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाए। अब जाकर मेरे को एक बात समझ में आ रहा है कि ये जो टॉप यूट्यूबर होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, एक्टर होते हैं, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, या फिर आप IAS IPS या आर्मी प्रोफेशनल को भी ले लो ना, इन सभी में मेरे को कुछ चीज़ें कॉमन दिखी। सबसे पहली तो ये कि इन सभी का कॉन्फिडेंस और सोचने का तरीका हमेशा ही पॉजिटिव होता है। उनकी वर्क एथिक्स, परसीवरेंस, डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस, सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ एंड कंसिस्टेंसी, यही सारी वो चीज़ है जो कि उनको हमेशा आगे लेकर जाती है। और एक चीज़ तो छूट ही नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी लोग टॉप पर हैं उन सभी में ये चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है कि वो सभी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। और वो मेहनत सिर्फ एक दिन की नहीं है, वो कंसिस्टेंसी के साथ है। और मेरे में यही वो चीज़ है जो लैक करती है। और आज मेरे अंदर इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है, और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन टू अर्थ है। कॉन्फिडेंस एकदम जमीन के नीचे घुसा हुआ है। और पिछले 10 साल में मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊँ। You know, what I did wasn't rocket science. You know, for me as a kid, I had dreams bigger than anybody else could ever dream. I wanted to be the greatest. I wanted to be the best. I went through a span of 5 or 6 years where I didn't miss a single day of training, 365 days a year. That made me different. I got 52 extra days each year.
than anybody else had. And in the sport of swimming, if you miss one day, it takes you 2 days to get back to where you were. Everybody else is taking a step back on Sunday when they weren't swimming, and I was taking that one step forward. यहाँ साला माइकल फेल्प्स साल के 52 दिन एक्स्ट्रा निकाल कर लेकर आता है मेहनत करने के लिए कि मेरे को उस दिन भी मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि मैं एक गोल्ड मेडल ओलंपिक में एक्स्ट्रा जीत सकूं। वाह, 23 गोल्ड मेडल वर्ल्ड में अकेले उसके पास है ओलंपिक के। और मेरे को पता नहीं मेरा टाइम जा कहाँ रहा है कि मैं जो करना चाहता हूँ उस काम को करने के लिए मेरा टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। भगवान ने अपने आप को 14 साल के लिए झोंका था, राम ने, तब जाके वो भगवान बने। तुम 6 महीने झोंक लो ना यार। तो हाँ, झोंक रहा हूँ मैं अपने आप को आज से 6 महीने के लिए। आज से मैं इन टॉप लोगों की क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेकर आऊँगा, चाहे वो डिसिप्लिन हो या फिर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करके आगे बढ़ना हो, या फिर एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना हो जो कि मुझे हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, हमेशा पॉजिटिव वे में सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग को सोच कर आगे बढ़ने में। इन सभी लोगों की क्वालिटीज़ को मैं अपने अंदर लेकर आऊँगा। उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि हमें पता नहीं होता है, जो कि हमें पीछे खींच रही होती है। तो चाहे वो चीज़ों को मैं बुक पढ़ के सीखूँगा या फिर एक्सपीरियंसेस के साथ सीखूँगा या फिर किसी के कोर्सेज को लेकर सीखूँगा, क्योंकि चाणक्य कहते हैं ना कि ज़िंदगी बहुत छोटी है कुछ चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करके सीखने में। तो उन लोगों से सीख लो जो कि पहले से उन चीज़ों को कर चुके हैं। दैट्स वाई मेरे लाइफ में मैंने एक चीज़ देखी, मैं टाइम मैनेजमेंट में मैं बहुत ही बुरा हूँ, डिसिप्लिन में बहुत ही बुरा हूँ। और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो है आर्मी वाले के अंदर। तो आर्मी में मैं तो जाने से रहा। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो आई हैव डिसाइडेड कि मेरे को करना चाहिए 25 हार्ड चैलेंज, जो कि मेंटल टफनेस के साथ साथ में डिसिप्लिन भी बिल्ड करता है। तो कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 25 हार्ड चैलेंज। क्या क्या चीज़ें मैं करूँगा वो मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊँगा। और ये बुक मैंने एक प्रेफर किया है इट डैट फ्रॉग का, जो कि ब्रायन ट्रेसी का बुक है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर और प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर। सो इस बुक में जो भी चीज़ें लिखी हुई है उन सारी चीज़ों को मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा, इन 75 हार्ड के दिनों में इम्प्लीमेंट करूँगा और लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। सो अगर आप भी जानना चाहते हो कि 75 हार्ड करने के बाद कैसा रिजल्ट रहता है मेरा, कई सारी चीज़ें नई ट्राई करूँगा मैं, उस चीज़ों का एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कैसा आता है, अगर आप भी जानना चाहते हो तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल के एक नए ब्लॉग में। सी यू, बाय बाय। तो चूँकि कल से मैंने डिसाइड किया कि मेरे को 75 हार्ड चैलेंज करना है, इसमें मेरे को सारी चीज़ें जो कि जीभ में स्वाद लेकर आती है उससे मेरे को उसको आई थिंक डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना आज समोसा पार्टी हो जाए, क्योंकि अगले 75 दिन तक मैं अपने फेवरेट समोसा और हल्दीराम भुजिया को टेस्ट नहीं करने वाला हूँ। सो लेट्स ट्राई बाबा के समोसे। मजा आ गया। मजे की बात ये है कि अभी जब हम समोसा लाने गए थे तो मेरे को पता चला कि बाबा ने एक नया समोसा लॉन्च किया है, सोयाबीन समोसा, और उसका स्टफी मेरे को थोड़ा सा टेस्ट करना है। बहुत ही मज़ा आ गया खा के। मेरे में मन में लालच हो रहा है कि उसको भी जल्दी से टेस्ट करें। बस अगले 75 दिन तक तो उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो अब उसको 75 दिन के बाद टेस्ट करेंगे। तो कैसा रहेगा वो सोयाबीन समोसा वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अरे अभी कहाँ भैया, आ गया का फेमस तिलकुट तो खा ही लीजिए। संयोग की बात ये है कि हम समोसा लेकर आए और पापा तिलकुट लेकर आए और भैया इनरसा लेकर आए, यानी कि आज गया का फेमस तिलकुट और गया का फेमस इनरसा दोनों हम अपने 75 डे हार्ड चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले खा रहे हैं। अब
आई होप कि कल से मेरे को एकदम खाने की तलब ना जगे, बट जगना ही है। ये भी भरा पड़ा है फ्रिज में, चिलकुट भी भरा पड़ा है। लड़ना पड़ेगा खुद से कि मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं खानी है।